Good morning to you all. I hope you all have learned all the identities of your chapter 2. And we just have two questions left in our chapter 2. That is your question number 15 and 16 of exercise 2.5. It's already informed that question number 11, 12, and 13 and 14 are not there in your syllabus because this identity is deleted for the time being. And let me start with the question. In this question, now you are given a polynomial, which is a quadratic polynomial, and we have to, they are saying that this is the area. A polynomial is given, and they are saying this polynomial is the area, and you have to find out the length and the breadth, right? We say that the formula for area is length multiply breadth. सो जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है आपने उसको L मल्टीप्लाई B की फॉर्म में लेकर आना है. जो आपके दो एक्सप्रेशन हो जाएंगे उसमें से एक आप लेंथ बोल देंगे और दूसरा आप ब्रेड्थ बोल देंगे, राइट? सो योर एक्सप्रेशन गिवन इज, दिस इज योर 15th क्वेश्चन. आई एम राइटिंग द फर्स्ट पार्ट. दिस इज 25 a square minus 35a plus 12. So you have to convert this polynomial as the product of two polynomials. दो के प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है. दैट मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर कुछ कॉमन है वो निकालोगे, देन यू विल अप्लाई योर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो भी आपका एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो दिस इज द एरिया गिवन. इसको फैक्टराइज करना है. वी डू नॉट हैव एनीथिंग कॉमन इन द थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो विच मेथड विल बी एप्लीकेबल है? Here we will have to apply middle term splitting method. So आप क्या करेंगे, middle term को split करेंगे. करिए जल्दी से, मुझे इसके factors बताओ. This is the area given to you. So first term और last term को आप multiply करते हो, ठीक है. उसके आप दो ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 35 आ जाए. क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? बिल्कुल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बताइए. 25 12 300, and we have to break this 300 into two parts so that we can get 35 as the addition or subtraction. 7 and 5 बेटा 35 के 7 and 5 नहीं, ये 300 को आपने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 35 आना चाहिए. व्हाट विल बी द नंबर्स? नहीं, एक मैं ले रही हूँ 20, एक मैं ले रही हूँ 15. इफ यू मल्टीप्लाई दिस 20 एंड 15 यू विल गेट 300. ठीक है, और इनको प्लस अगर आप करते हैं तो 35 भी आ रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 300. then you have to write it as the product of two numbers whose addition or subtraction must be the middle term. So we can write it as 25a square minus, we have broken 35 as 20a and 15a. दोनों को प्लस करने पर 35 आ रहा है. So you will put the minus sign in front of both the terms because minus minus आपका प्लस हो जाएगा. And दूसरा इसके बाद आपकी जो लास्ट टर्म है that will be as it is. Then we have to take the common. इन दोनों में से कॉमन निकालिए. You will get 5a common. What will be left? 5 5 5s are 25. So 5a minus 5 4s are 20. So it will be 4. इनमें से कॉमन लेंगे तो -3 आपका कॉमन आएगा. एंड इनसाइड 5a माइनस, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हो तो अंदर वाला प्लस आपका हो गया -3 4s are 12. ठीक है, ये दोनों हो गए 5a minus 4 सेम. So we will take it out 5a minus 4 in one bracket and in the other bracket from here you will have 5a minus 3. ठीक है, ये तो एरिया था. area is the product of the two terms. So one of them will be taken as length, the other one will be taken as breadth. या ये length ये breadth, या ये length ये breadth, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है,
आंसर 5a minus 4 and 5a minus 3. Clear to you all? So we are on second part of your 15th question, and this is the area is 35y square plus 13y minus 12. Right? Again, we have to split the middle term. Product of the first and the last term is 35 into 12. Okay, you have to break it into two parts so that you can get 13. हाँ जी, जल्दी से बताइए. Instead of multiplying ना, इसी को 35 into 12, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है ना, हम बजाय कि इसको मल्टीप्लाई करें, इसको हम ब्रेक कर देते हैं. 35 कैन बी रिटन एज 5 into 7 and this 12 can be written as 2 2 3. ठीक है, अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं so that we can get 13. अगर मैं 5 के साथ 2 और 2 कनेक्ट कर देती हूँ और 4 के साथ 3 कनेक्ट करती हूँ तो मेरा क्या बनेगा 20 and 21. 21 से मेरा 13 नहीं आने वाला, सो आई विल हैव टू चेंज द पेयर्स. उसी तरह से आप इसकी प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि आपके पेयर्स क्या बन रहे हैं. जल्दी से बताइए. If I take these together and this together, तो क्या बनेगा 7 4s are 28, 5 3s are 15. क्या इन दोनों का डिफरेंस 13 आ रहा है? Yes, it is. ठीक है, तो आपके दो पेयर्स हो गए 28 and 15. So I will write it as 35y square plus 28y minus 15y minus 12. 28 में से 15 माइनस करेंगे तभी तो 13 आएगा और पॉजिटिव चाहिए इसलिए 28 के आगे आपने प्लस साइन लगा दिया. ठीक है, नाउ टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स. You are taking 7y common and inside you will have 5y plus 4, and from these two we will take minus 3 common. We will have 5y plus 4 because you have taken negative common, तो अंदर वाला आपका साइन प्लस हो जाएगा. ये दोनों सेम है, that means question बिल्कुल ठीक जा रहा है. So we have 5y plus 4 as one of the factor and 7y minus 3 as the other factor. So length is equal to 5y plus 4 and breadth is equal to, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, 7y minus 3. ये लेंथ ये ब्रेथ या ये लेंथ ये ब्रेथ आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं. क्लियर? सो वी जस्ट हैव स्प्लिटेड द मिडल टर्म. क्योंकि मुझे एरिया गिवन था तो मुझे इसे दो टर्म्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर आना था. जो भी दो प्रोडक्ट्स आते, जो नंबर्स आते हैं उनमें से एक लेंथ और एक ब्रेथ हो जाता. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव फैक्टराइज्ड इट, राइट? ओके, coming to the next question. जैसे यहाँ पर एरिया गिवन था, in the next question we are given the volume given है and you have to tell the length, breadth and height. That means now you have to find out three factors. So your question 16 first part is volume is equal to 3x square minus 12x, right? Now we have to write it as the product of three terms. फैक्टराइज करना है. ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से हमारे पास दो रूट्स आएंगे, बट मुझे इसको l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h लिखना है, थ्री टर्म्स लिखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, सबसे पहले फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हो, आप लेते हो कॉमन. इनमें कॉमन क्या आ जाएगा 3x आपका कॉमन आ गया. व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ से रह गया x माइनस और यहाँ से आपका क्या रहेगा 3 बाहर आया है 4. ठीक है, तो आपके पास ये तीन टर्म्स आई हैं, इसमें से हम 3 को अलग कर देंगे, 3x एंड x माइनस 4. ठीक है, तीन टर्म्स हो गई. सो वी आर सेइंग l इज 3, b इज x एंड h इज x माइनस 4.
ठीक है, आपने लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी थी, हमने लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल दी। क्लियर? इसका सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। नाउ वी आर गिवन द वॉल्यूम एज 12 ky square plus 8 ky minus 20 k। यस, सो ये है आपका वॉल्यूम। अगेन क्वाड्रेटिक है, पहले आप सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री टर्म्स? हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 से हमारे तीनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, 12 भी, 8 भी, 20 भी। सो 4 is common, k is here. So in all the three terms k is there, so we are taking out k common, and what is left inside 3y square plus 4 बाहर आया, यहाँ से रह गया 2 और y रह गया -5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपकी ये लेंथ हो गई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म। ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, क्या बनाएंगे पेयर्स, मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक करेंगे? सो वी आर गेटिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 के, वी हैव टेकन कॉमन, और इसके अंदर है आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 15, माइनस करने पर या प्लस करने पर 2 भी आना चाहिए। सो 5 and 3 आर इटसेल्फ द फैक्टर्स। 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। सो यू विल राइट इट एज 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, 4 के आपका कॉमन एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन है y, अंदर रह गया आपके पास 3y प्लस 5। नेक्स्ट में से आपने -1 कॉमन लिया, यहाँ से रह गया आपका 3y, माइनस कॉमन आ चुका है, सो इट विल बी +5। ठीक है, दोनों में सेम हो गया 3y + 5, सो यू विल राइट इट एज इट इज 3y + 5, एंड द रिमेनिंग टर्म्स इन द ब्रैकेट आर, यहाँ से रह गया y, यहाँ से रह गया -1, राइट? सो व्हाट आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट? हाँ जी बिल्कुल, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। लेंथ हो गई आपके पास ये 4 के, ब्रेड्थ हो गई 3y + 5, एंड height is y - 1. Listen, in this question, so we have volume as the product of 4k, 3y + 5 and y - 1। ठीक है, बट वॉल्यूम हम कहते हैं कि ये होती है L × B × H। ठीक है, तो आपके पास ये 3 का प्रोडक्ट है, आपके पास लेंथ क्या आ गई 4k, what is breadth? Your breadth will be 3y + 5, that is the second bracket, and the height will be the third bracket, means y - 1। I hope it is clear to you all now. Clear? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. Thank you.